डिस्कस किए थे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नट्स इक्वेशन. नाउ जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, नट्स इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन which gives the which gives the electrode potential of any electrode at any concentration. It is a mathematical relation which gives the electrode potential of any electrode at any concentration. And by using this mathematical relation, we can calculate the electrode potential of cathode and anode, which are used in a galvanic cell at any concentration. कैथोड और एनोड के इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल हम किसी भी कंसंट्रेशन पे कैलकुलेट कर सकते हैं, और एज वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल of the electrode at any concentration, on the basis of that we calculate the EMF of cell at any concentration. तो indirectly नट्स इक्वेशन का जो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन या सबसे जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, by using this mathematical equation what we have calculate the EMF of cell at any concentration. We calculate E cell. क्या कैलकुलेट कर सकते हैं आप? EMF of cell या फिर E cell कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. So what is the Nernst equation? Whenever a metal rod is dipped into its electrolytic solution, then each metal atom is in contact with the metal ion. जैसे for example, जैसे हमने Daniell cell का working discuss किया, in the Daniell cell zinc electrode dip into the zinc sulfate solution. In this, zinc atoms are basically in contact with the zinc ion, and second जो container है, it consists of copper electrode dip into the copper sulfate solution. So in this container, in this electrolytic solution, copper atoms are in contact with copper ions. So whenever the metal electrode dip into its electrolytic solution, metal atoms are in contact with metal ions, and the potential difference between metal atoms or electrode and its electrolytic solution is called electrode potential. ये हम ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. तो नट्स इक्वेशन क्या बोल रहा है कि सपोज इफ द मेटल आयन accept the electrons and converted into metal atom, if this reduction processes take place, then Nernst equation क्या होगा? The electrode potential of any electrode at any concentration is equals to E naught minus 2.303 RT by NF log concentration of metal atom divided by concentration of metal ion. This is the electrode potential of a electrode, that is E. E क्या है आपका? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. E नॉट क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. R क्या है आपका? गैस कांस्टेंट, and its value is 8.314 जूल केल्विन मोल इनवर्स. जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स. ठीक है. T क्या है आपका? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट इज इन केल्विन, एंड दिस एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज बेसिकली 298 केल्विन. T की वैल्यू कितनी है? 298 केल्विन और 25 डिग्री सेंटीग्रेड. N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज. कितने इलेक्ट्रॉन वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ग्रैब कर रहा है metal ion to reduce into the metal atom. और F क्या है? F is Faraday constant. This basically Faraday constant is what? The amount of charge contained by 1 mole electron. What is Faraday constant? The amount of charge contained by 1 mole electron.
और इसकी वैल्यू कितनी होती है 96500 कूलम. So this mathematical relation is called Nernst equation. इस mathematical relation को हम क्या बोलते हैं? Nernst equation. E is equals to E naught minus 2.303 RT by NF log M upon concentration of metal atom divided by concentration of metal ion. ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में हमने M लिखा है that is what concentration of metal atom. Now concentration of metal atom is always a constant. ठीक है, तो वो कांस्टेंट रहती है. तो कंसंट्रेशन ऑफ मेटल एटम हम क्या लेंगे, क्योंकि मेटल एटम की कोई कंसंट्रेशन होती ही नहीं है. कंसंट्रेशन किसकी होती है, मेटल आयन की होती है. तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ मेटल एटम की जो भी मेटल आयन की जो भी कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन यहाँ आ जाएगी. तो इक्वेशन में क्या चेंज हुआ देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल एटम इज 1, सो E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस, अब देखिए ये जितने भी वैल्यूज RT की वैल्यू है 2.303 into 8.314 into 298 डिवाइड बाय n into 96500, ये सारे वैल्यूज हमने प्लेस कर दिए. log 1 upon concentration of metal ion. so ये सारी वैल्यूज जो आई E is equals to E naught minus 0.0591 upon n. ये सारी न्यूमेरिकल वैल्यू जब हमने सॉल्व करी तो ये वैल्यू कितनी आई 0.0591 अपॉन n log 1 अपॉन mn प्लस. अब देखिए हम यहाँ log की प्रॉपर्टी लगाते हैं. log m बाय n या log a बाय b क्या होता है, log a माइनस log b. ठीक है, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n log 1 माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ m मेटल आयन. अब log 1 की वैल्यू होती है 0, तब ये जब वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो ये टर्म हो जाएगा 0, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो E की वैल्यू हो जाएगी E नॉट प्लस 0.0591 अपॉन n log कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस. सो दैट इज a final Nernst equation for this process. आपका यदि प्रोसेस ये है for this process, ये आपकी Nernst equation हो जाएगी. या तो ये लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं E equals to E naught minus 0.0591 upon n log 1 upon concentration of metal. आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं या फिर ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं. सो दैट इक्वेशन इज कॉल्ड Nernst इक्वेशन, एंड दिस इक्वेशन गिव्स द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी मेटल इलेक्ट्रोड एट एनी कंसंट्रेशन. E नॉट सेल क्या है आपका, E नॉट क्या है आपका इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और E क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इट इज क्लियर. व्हाट M is metal atom. M जो है हम मेटल एटम ले रहे हैं. कोई एक मेटल है M which is dipped into the its electrolytic solution. यहाँ जो M है वो है मेटल एटम. जैसे copper is dipped into the copper sulfate solution, तो M यहाँ क्या हो जाएगा copper. Zinc is dipped into the zinc sulfate solution, तो M क्या हो जाएगा zinc हो जाएगा. So by observing this mathematical equation, what we conclude that electrode potential of any electrode depends on which parameters. First, it depends on the nature of metal electrode, कि आपका metal electrode किस मटेरियल का है, इलेक्ट्रोड किस मटेरियल का है. Second, it depends on the concentration of metal ion. आपने जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रोड डिप है उसकी कंसंट्रेशन क्या है उस पर डिपेंड कर रहा है. तीसरा, it depends on the temperature. किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है. किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे. ठीक है, तो by observing this equation we conclude that the electrode potential depends on these parameters. टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, मेटल एटम या मेटल इलेक्ट्रोड किस मटेरियल का है उस पर डिपेंड कर रहा है. तीसरा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इस पे डिपेंड कर रहा है. So by using this equation
what we now we have calculate electrode potential of any electrode at any concentration. Now we calculate the electrode potential of zinc electrode and electrode potential of copper electrode, which are the component of a Daniell cell. और उसके बेसिस पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, Daniell cell का EMF of cell at any concentration, E cell कैलकुलेट करेंगे. तो now we are using this equation for Daniell cell. Now EMF of Daniell cell using Nernst equation. Nernst equation क्या है, E is equals to E naught plus 0.0591 upon n log concentration of metal ion. तो देखिए Daniell cell में आपका क्या हो रहा है, zinc electrode is dipped into the zinc sulfate solution. तो वहां आपका रिडक्शन क्या हो जाएगा, रिडक्शन प्रोसेस क्या होगा, जिंक एटम loses gain 2 electrons and converted into zinc atom. तो इसके लिए हम इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या लिखेंगे, E Zn2 plus Zn is equals to E naught Zn2 plus Zn. बेसिकली जो भी हम इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल लिख रहे हैं, these are the standard, ये आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है और ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल है. ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है और ये नॉर्मल रिडक्शन पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन. तो सारा प्रोसेस जो होगा वो रिडक्शन प्रोसेस के बेसिस पे लिखा जाएगा. तो E is equals to E naught plus 0.0591 upon 2, क्योंकि इस प्रोसेस में आपके कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, 2. कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन. ठीक है. फिर नेक्स्ट ये आपका हो गया जिंक इलेक्ट्रोड के लिए. हाँ जी, क्या कह रहे हैं बेटा, मेटल आयन इज कन्वर्टेड इनटू मेटल एटम. ठीक है. अब कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए क्या हो जाएगा, कॉपर आयन एक्सेप्ट द 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्टेड इनटू कॉपर एटम. तो अब कॉपर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ECU2 plus Cu is equals to E naught plus 0.0591 upon 2 log of concentration of copper ion. ये आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया जिंक इलेक्ट्रोड का, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया आपका कॉपर इलेक्ट्रोड का. अब जिंक इलेक्ट्रोड आपका क्या है, एनोड है, और कॉपर इलेक्ट्रोड क्या है आपका, कैथोड. डैनियल सेल के अंदर जिंक इलेक्ट्रोड क्या है आपका, एनोड, और ये क्या है आपका कैथोड. तो ये बेसिकली आपका क्या हो गया, एक तरीके से दिस इज योर, ये वैल्यू क्या हो गई, E एनोड, और ये वैल्यू क्या हो गई, E कैथोड. ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, और ये हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड. एंड एज वी नो दैट द EMF ऑफ सेल इज व्हाट, द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ बोथ द इलेक्ट्रॉन्स. तो अब हम, ये इक्वेशन आपकी 1 है, ये इक्वेशन 2 है. सो EMF ऑफ सेल क्या होगा, E कैथोड माइनस E एनोड. क्या होगा, E कैथोड माइनस E एनोड. तो ये आपका क्या हो जाएगा, EMF ऑफ डैनियल सेल एट एनी कंसंट्रेशन. तो कैसे निकालना है, देखिए, now EMF of cell that is E cell. तो E cell क्या हो गया, E cell is equals to E cathode minus E anode, यानी ECU2. इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड माइनस इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड. ठीक है. तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1.
तो ई सेल क्या हो गया, इक्वेशन 2। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को थोड़ा सा प्रॉपर वे से थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। पहले पूरी इक्वेशन नहीं ले रहा हूं कि इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, पहले ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या लिया, प्लस 0.0591/2 लॉग ऑफ Cu2 प्लस माइनस लॉग ऑफ प्लस x। E cell is equals to E naught Cu2 plus Cu minus E naught Zn2 plus Zn plus 0.0591/2 log of concentration of Cu2 plus minus log of concentration of Zn2 plus। ये समझ में आया। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 किया तो पहले दोनों के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफरेंस कर लिया, फिर 0.0591/2 कॉमन ले लिया, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन। ठीक है, अब देखिए ये हो गया ई सेल एंड दिस इज व्हाट ई नॉट सेल। ये वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। ये हो गया ई सेल। अब यहां क्या किया मैंने, माइनस कॉमन ले लिया, 0.0591/2 ये यहां क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ Zn2 प्लस माइनस लॉग ऑफ Cu2 प्लस। मैंने थोड़ा सा रीअरेंजमेंट चेंज किया है, यहाँ पहले प्लस साइन था, यहाँ अब मैंने क्या किया, माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो ये वाली टर्म पहले आ जाएगी, ये वाली टर्म पीछे चले जाएगी। ठीक है, अब यहाँ ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591/2 लॉग ऑफ लॉग ए माइनस लॉग बी। तो log a by b, तो ये आपका क्या हो गया, EMF ऑफ डेनियल सेल एट एनी कंसंट्रेशन। अब देखिए डेनियल सेल की यदि हम ओवरऑल सेल रिएक्शन चेक करें तो देखिए जिंक एटम इज कन्वर्टेड इनटू जिंक आयन बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर आयन एक्सेप्ट द 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू कॉपर एटम। ये एनोड पर होती है और ये कैथोड पर होती है। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या हो रही है, zinc atom react with copper ion and converted into zinc ion and copper atom। तो zinc ion आपके क्या है, प्रोडक्ट आयन है, और कॉपर आयन क्या है, आपके रिएक्टेंट आयन है। क्या है, कॉपर आयन क्या है, रिएक्टेंट आयन है, और जिंक आयन क्या है, आपके प्रोडक्ट आयन है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस रिएक्शन को, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591/2 log of concentration of product upon concentration of reactant। This is the E cell for Daniell cell, EMF of cell for Daniell cell। अब इस तरीके से किसी भी गैल्वेनिक सेल का आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, EMF ऑफ सेल। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, EMF ऑफ सेल। इज इट क्लियर, समझ में आया ये। ठीक है, यदि मुझे किसी एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए लिखना है तो कैसे लिखूंगा, देखिए नॉर्मल एक जनरल सेल रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, जैसे EMF ऑफ सेल, EMF of cell for general cell reaction। यदि आपकी सेल रिएक्शन इस तरीके से हो रही है और रिएक्टेंट A एंड रिएक्टेंट B is converted into product C
एंड प्रोडक्ट डी। यानी दो रिएक्टेंट है ए और बी, वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, सी और डी में। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी आर द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ ए, बी, सी एंड डी रेस्पेक्टिवली। तो इसके लिए आपका ई सेल क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन क्या है, वहां हमने डैनियल सेल के लिए वैल्यू 2 ली थी, क्योंकि उनमें सेल रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हो रहे थे, 2। लेकिन यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हो रहे हैं, n। जनरल प्रोसेस है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हर प्रोसेस के लिए डिफरेंट रहेगा। तो 0.0591 अपॉन n log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 by 2 log of concentration of product upon concentration of reactant, and the concentration terms are raised by suitable stoichiometric coefficients. Is it clear? Any doubt in that part? ठीक है, देखिए अब हम कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं, तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे हो रहा है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, निकल आयन in contact with nickel atom and silver ion are in contact with silver atom, और ये आपका एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, दैट इज योर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने किया। ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड। ठीक है, सेल रिएक्शन देखिए कैसे लिखेंगे। एट एनोड हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और निकल एटम कन्वर्टेड इनटू निकल आयन बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। और एट कैथोड क्या होगा, देखिए सिल्वर आयन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू सिल्वर एटम। अब देखिए प्रोसेस को बैलेंस करना है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ लिख देंगे 2 इंटू 2 और ये 2। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या हो गई, देखिए निकल एटम रिएक्ट विद द ट्वाइस ऑफ सिल्वर आयन कन्वर्टेड इनटू निकल आयन एंड ट्वाइस ऑफ सिल्वर एटम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने हुए आपके, 2। कितने एक्सचेंज हुए प्रोसेस के अंदर, 2। तो अब आप क्या लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ निकल आयन एंड दैट कंसंट्रेशन इज रेज टू पावर 1, क्योंकि एक ही निकल आयन है। देखिए हमने जो इससे पहले प्रोसेस लिखा था उसमें ईच कंसंट्रेशन टर्म्स इज रेज विद द सुटेबल स्टोइकियोमेट्रिक पावर। तो यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक पावर क्या है, 1 ही है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ही है, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ आपका 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ आपके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सिल्वर आयन का क्या है, 2। तो ये आपकी इस सेल की क्या हो जाएगी, ईएमएफ की इक्वेशन। आपको ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है, तो ई नॉट सेल आपको सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज ई नॉट कैथोड। ई नॉट कैथोड क्या है, माइनस ई नॉट एनोड। अब ये दोनों वैल्यूज आप कैसे कैलकुलेट, ये दोनों वैल्यूज आपको क्या मिलेगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मिलेगी। तो या तो आपको दोनों इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन होंगे, या फिर ई नॉट सेल गिवन होगा। या तो ये दोनों वैल्यूज गिवन होंगी या फिर ये वैल्यू गिवन होगी, उसके बेसिस पे आप ई सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वैल्यू गिवन होगी,
कंसंट्रेशन ऑफ आयंस गिवन होगी। देखिए मैंने यहाँ इसमें लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ निकल आयन इज C1, कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन इज C2। तो न्यूमेरिकली ये वैल्यूज गिवन होंगी, तो आप इससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, मोर एग्जांपल। ठीक है, नाउ एक और हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिया, जैसे एल्यूमिनियम एटम इन कांटेक्ट विद एल्यूमिनियम आयन, और यहाँ हमने ले लिया कॉपर आयन इज इन कांटेक्ट विद कॉपर एटम। ठीक है, जैसा देखिए जो ज्यादा रिएक्टिव है वो हमेशा एनोड बनेगा, जो लेस रिएक्टिव है वो कैथोड बनेगा। अब हम सेल रिएक्शन लिखे एनोड और कैथोड पर, तो देखिए कैसे लिखेंगे सेल रिएक्शन। जब भी आप इस वैरायटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहले आपका हाफ सेल रिएक्शन आएगा, फिर कंप्लीट सेल रिएक्शन आएगा, उससे आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस पता चलेंगे, और फिर आप ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट करेंगे। इज इट क्लियर? जैसे देखिए एट एनोड क्या हुआ, एल्यूमिनियम एटम इज कन्वर्टेड इनटू एल्यूमिनियम आयन बाय लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, और कैथोड पर रिडक्शन होगा तो कॉपर आयन एक्सेप्ट द 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू कॉपर एटम। अब देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने हो रहे हैं, 3, और यहाँ कितने हो रहे हैं, 2। बैलेंस करना पड़ेगा, तो बैलेंस कैसे करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको 3 से। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इज 6। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने पड़ेंगे, तो 2 एल्यूमिनियम atom react with the 3 aluminum ion converted into 2 aluminum ion and 3 copper atom। ये आपका ओवरऑल सेल रिएक्शन हो गया। तो इस बेसिस पे आपका इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने हुए, 6। तो E cell is equals to E naught cell minus 0.0591 upon 6 divided by E cell is equals to E naught cell minus 0.0591 upon 6 into log of concentration of product ion। अब ये प्रोडक्ट आयन की पावर क्या हो जाएगी, 2, जो कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 2, एंड कॉपर आयन, और कॉपर आयन की पावर क्या हो जाएगी, 3। तो दैट इज योर इक्वेशन ऑफ E cell। इज इट क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? कंफर्म? एनी डाउट? इसमें कुछ डाउट? ठीक है, अब चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, तो और आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, अब ये जो हमने जनरल इक्वेशन लिया उसमें आप न्यूमेरिकल वैल्यूज ले लेते हैं। ठीक है, जैसे अब आपका इस बार ना क्वेश्चन कि यू हैव गिवन अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच कॉपर एटम आर इन कांटेक्ट विद द कॉपर आयन एंड सिल्वर atoms is in contact with the silver ion। ठीक है, तो ये कॉपर और ये कॉपर आयन है। कॉपर आयन की कंसंट्रेशन आपको दे रखी है 1 मोलर, और इस तरफ है आपके सिल्वर आयन is in contact with silver atom and the concentration of silver ion is 1 concentration of silver ion भी 1 मोलर दे रखी है। चलिए 1 मोलर ही ले लेते हैं। ठीक है, दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। नाउ कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल इफ E naught cathode and E naught anode दोनों दे रखे हैं। सिल्वर इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है आपका 0.80 वोल्ट, और कॉपर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.34 वोल्ट। ठीक है, और आपको कैलकुलेट क्या करना है, ई सेल कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करना है,
ई सेल कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन है आपका। तो ई सेल क्या होगा, ई सेल कैलकुलेट करने से पहले हम सेल रिएक्शंस लिख लेते हैं। ये एनोड है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर रिडक्शन। तो एट एनोड क्या हुआ, कॉपर एटम इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर आयन बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। और कैथोड पर क्या हुआ, सिल्वर एटम एक्सेप्ट द 1 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू सिल्वर एटम। देखिए ये सेल रिएक्शंस आपको लिखना कंपलसरी रहेगा। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एटम आयन में कन्वर्ट होंगे, और कैथोड पर रिडक्शन होगा यानी आयन हमेशा एटम में कन्वर्ट होंगे बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स। अब ओवरऑल सेल रिएक्शन आपकी बैलेंस करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 2 और ये 2। ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखी हमने, तो ये हुआ कॉपर एटम रिएक्ट विद 2 सिल्वर आयन कन्वर्टेड इनटू 2 सिल्वर एटम एंड 1 कॉपर आयन। ये आपकी ओवरऑल सेल रिएक्शन होगी। और इस प्रोसेस में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, 2। ठीक है। अब आप पहले कैलकुलेट करेंगे ई सेल कैलकुलेट करने से पहले ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल होता है ई नॉट कैथोड, कैथोड आपका सिल्वर इलेक्ट्रोड है और एनोड आपका कॉपर इलेक्ट्रोड है। तो ई कैथोड माइनस ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये हो जाएगा ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। तो ये हो गया 0.80 माइनस 0.34, 0.80 माइनस 0.34। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 0.46 वोल्ट। ये आपका ई नॉट सेल आ गया। कॉल डिस्कनेक्ट हो जाए तो वापस कनेक्ट हो जाइएगा ना। ई सेल, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 log concentration of product ion Cu2 plus upon concentration of silver ion का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 सिल्वर आयन। तो देखिए ई सेल क्या हुआ, 0.46 माइनस 0.0591 0.0591 डिवाइड बाय 2 log of concentration of copper ion 1 and concentration of silver ion ये भी 1, दोनों 1 दे रखी है, तो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर। तो log 1 होता है 0, क्या होता है 0, तो ये वाली पूरी वैल्यू हो जाएगी 0। तो ई सेल वही आएगा जो आपका ई नॉट सेल आया। तो ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.46। Is it clear? आया समझ में? Any doubt in that part? ठीक है। अब देखिए इसी के अंदर, इसी में मैं चेंज कर देता हूं। जैसे मैं दोनों की कंसंट्रेशन चेंज कर दूं, जैसे फॉर एग्जांपल कि इफ आई एम टेकिंग अ कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन इज 2 मोलर एंड कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन इज 0.05 मोलर। इसी के अंदर मैंने चेंज कर दिया सेकंड क्वेश्चन कि इसकी कंसंट्रेशन ले ली 2 मोलर और यहां कंसंट्रेशन ले ली मैंने 0.05 मोलर। तो अब देखिए बाकी सारा प्रोसेस एज इट इज वही रहने वाला है। यहां जो 1 और 1 था वो चेंज हो जाएगा, बाकी पूरा प्रोसेस वही रहेगा। पहले आप सेल रिएक्शंस लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पता करेंगे, फिर ई नॉट सेल कैलकुलेट करेंगे, फिर ई सेल कैलकुलेट करने के लिए यहां जो कंसंट्रेशन थी वो चेंज कर देंगे। तो कंसंट्रेशन क्या चेंज हुई देखिए, ई सेल is equals to 0.46 minus 0.0591 upon 2 log concentration of copper ion। concentration of copper ion कितनी है 2,
और कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन है 0.05 यानी 5 into 10 to the power -2 का स्क्वायर, क्योंकि 0.05 को हमने लिखा 5 into 10 to the power -2 और इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब इस पार्ट को आपको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। E cell is equals to E naught cell minus 0.0591 upon 2 log 2 upon ये हो गया 25 into 10 to the power -4। ठीक है, ये है आपका सॉरी 0.46। तो E cell क्या हो गया 0.46 minus 0.0591 upon 2 log 2 by 25 और 10 to the power 4 को लिख दिया 100 into 100, ये हो गया 4। ठीक है, ये हो गया log 800। ठीक है, ये हो गया log 800। log 800 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए। E cell is equals to 0.46 minus 0.0591 upon 2। अब log 800 है तो या तो आप 8 और 100 को अलग कर दीजिए, ठीक है, या फिर डायरेक्टली आप कैलकुलेट करना चाहें तो देखिए ये आपका 800 है, तो पहले इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, डेसिमल से पहले कितने डिजिट है 3, तो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 2। कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा 2, डेसिमल से पहले जितने डिजिट हैं उससे एक कम कर देना है, तो 3 डिजिट्स हैं तो आपका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 2। और मेंटिसा के लिए आपको क्या चेक करना है 80 के करस्पॉन्डिंग 0, क्या चेक करना है 80 के करस्पॉन्डिंग 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.3010 है इंटू 3 करेंगे तो हो जाएगी 309, ये हो जाएगा 9030, तो लॉग वैल्यू आएगी 2.9030। आप लॉग टेबल से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं कैलकुलेट करने का। log 800 को क्या लिखा, log 800 लिखा log 8 into 100, फिर log a into b की प्रॉपर्टी लगाई log 8 प्लस log 100, ठीक है, log 8 को लिखा 2 to the power 3 और log 100 की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 2, क्योंकि log 10 की वैल्यू होती है 1, log 100 की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 log 2 प्लस 2, तो ये 3 log 2 की वैल्यू आपको याद रखनी है 0.3010 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2.9030, ये आपका log 800 का वैल्यू आ जाएगा। तो लॉग कैलकुलेट करने के लिए आपके पास बेसिक लॉग के रूल आपको याद रखने हैं और कुछ लॉग वैल्यूज आपको याद रखनी है। जैसे log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, log 3 की वैल्यू होती है 0.4771, log 5 की वैल्यू होती है 0.6991, ठीक है, 0.6990, ये 3 वैल्यूज आपको याद रखनी है। log 2, 3, 5, और हो सके तो नंबर को आप फैक्टराइज करिए उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में और रीअरेंज करिए। यदि सपोज ऐसा ही नंबर आ जाता है जिसमें log 2, 3, 5 यूज नहीं हो रहे हैं तो फिर आप लॉग टेबल यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। लॉग टेबल में आपको पहले कैरेक्टरिस्टिक चेक करना पड़ेगा और फिर मेंटिसा चेक करना पड़ेगा, ठीक है। मेंटिसा के लिए वो आपकी नेचुरल लॉग टेबल जो होती है वो यूज की जाती है। कैरेक्टरिस्टिक के लिए तो रूल आपको पता ही है, डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं वो चेक करने हैं, उसके बेसिस पे आपका क्या आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक पता चल जाएगा। तो अब ये वैल्यू आ गई लॉग के लिए, तो लॉग का वैल्यू कैसे आया, E cell is equals to 0.46 minus 0.0591 upon 2 into 2.9030। अब ये वैल्यू न्यूमेरिकली आपको क्या करनी है, सॉल्व करनी है। एज यू सॉल्व दिस वैल्यू यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ E cell, क्या मिल जाएगा आपको
ई सेल मिल जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू आएगी आपकी 0.374 वोल्ट। कितनी आएगी? 0.374 वोल्ट। तो इस तरीके से आपको ई सेल की वैल्यू मिल गई एट डिफरेंट कंसंट्रेशन। इज इट क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? इसमें कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए। एक और क्वेश्चन डिस्कस करें। एक और क्वेश्चन डिस्कस करना है। हेलो, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही। और देखिए ये क्वेश्चन जो है वो कंफर्मली आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। ये इस वैरायटी का क्वेश्चन आपको कंफर्मली एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। जैसा आपको दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमियम एटम इज इन कांटेक्ट विद क्रोमियम आयन ऑफ कंसंट्रेशन 0.1 मोलर। ये आपका एनोड है और फेरस आयन ऑफ कंसंट्रेशन 0.01 मोलर इज इन कांटेक्ट विद आयरन, ठीक है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। और आपको दोनों के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं। ये दे रखा है -0.75 वोल्ट और फेरस का दे रखा है -0.45 वोल्ट, ठीक है। और आपको कैलकुलेट करना है, नाउ कैलकुलेट द ई सेल, ठीक है। तो वही सॉल्व करने का तरीका, पहले हाफ सेल रिएक्शंस लिखेंगे। तो हाफ सेल रिएक्शन लिखे, एट एनोड क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्रोमियम एटम कन्वर्टेड इनटू क्रोमियम आयन बाय लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन। देखिए कुछ भी नहीं है, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट, एटम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है वो आपको यहाँ दे रखा होगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई कन्वर्ट किस में करना है। तो क्रोमियम एटम इज कन्वर्टेड इनटू क्रोमियम आयन और पॉजिटिव क्रोमियम आयन बाय लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया एनोड पर ऑक्सीडेशन। कैथोड पर क्या हो रहा है? देखिए रिडक्शन। फेरस आयन इज कन्वर्टेड इनटू फेरस एटम Fe2+ by gaining 2 electron and converted into iron atom। अब देखिए यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं या 2 गेन हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज प्रॉपर नहीं है, बैलेंस करना पड़ेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से, और बैलेंस कर देंगे। तो देखिए 2 chromium atom react with 3 ferrous ion converted into 2 chromium ion and 3 ferrous iron atom, and the number of electron exchange कितने होंगे इस प्रोसेस में? 6। कितने हो जाएंगे? 6। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे पहले ई नॉट सेल, क्योंकि ई सेल कैलकुलेट करने के लिए ई नॉट सेल कैलकुलेट करना पड़ेगा। दैट इज ई नॉट कैथोड। कैथोड ये है माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। तो ये आया -0.45 माइनस -0.75, तो ये हो गया 0.30 वोल्ट। तो ई नॉट सेल कितना आ गया आपका? 0.30 वोल्ट। नाउ दिस ई नॉट सेल वैल्यू गिव्स अ इंपॉर्टेंट point about this cell reaction. Whenever the E naught cell of the reaction or E naught cell of the galvanic cell comes positive, this indicate that this cell reaction is spontaneous. क्या होगी? ये cell reaction feasible है, spontaneous है, it doesn't require any external agency. जब भी किसी भी सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल पॉजिटिव आता है तो ये चीज क्या इंडिकेट करती है कि वो प्रोसेस, वो सेल रिएक्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस है। इट डजंट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल एजेंसी टू रन द प्रोसेस। तो दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ नर्स इक्वेशन। जब हम नेक्स्ट सेशन के अंदर नर्स इक्वेशन की एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे तो उसमें सबसे पहला एप्लीकेशन यही आता है, टू चेक द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस।
तो वो कैसे चेक करते हैं? वी जस्ट चेक आउट द वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल. इफ द वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल कम्स पॉजिटिव मींस आपका प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस है. और ई नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव आती है मींस दैट प्रोसेस इज नॉट स्पॉन्टेनियस. तो ई नॉट सेल पॉजिटिव आया तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है. अब आपको ई सेल कैलकुलेट करना है. तो ई सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, अब हमें इस सेल रिएक्शन की जरूरत नहीं है. ये पूरा प्रोसेस आपको क्वेश्चन के अंदर बताना रहता है. ठीक है. तो ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 6 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फेरस आयन. अब देखिए ओवरऑल सेल रिएक्शन वहां हमें चाहिए थी. मैं वापस लिख दे रहा हूं. सेल रिएक्शन क्या होगी? 3 कॉपर एटम से 3 क्रोमियम एटम रिएक्ट विद 2 chromium atom react with 3 ferrous ion converted into 3 ferrous iron atom and 2 chromium ion. तो यहाँ आपके फेरस आयन की देखिए प्रोडक्ट क्रोमियम है, क्रोमियम आयन है, तो क्रोमियम आयन का स्क्वायर डिवाइड बाय फेरस आयन की कंसंट्रेशन का क्यूब. तो ओवरऑल ये सेल रिएक्शन आपको रिक्वायर्ड रहेगी ये नर्स इक्वेशन से ई सेल लिखने के लिए. ठीक है. तो अब ई सेल क्या हो गया? 0.30 माइनस 0.0591 अपॉन 6 लॉग. अब क्रोमियम आयन की कंसंट्रेशन आपको दे रखी है 0.1 का स्क्वायर, 0.1 इंटू 0.1 डिवाइड बाय ये दे रखी है 0.1 इंटू 10⁻⁻2 का होल क्यूब. अब इसको सॉल्व करें. देखिए ई सेल इज इक्वल टू 0.30 माइनस 0.0591 अपॉन 6 लॉग ये आपका 1 इंटू 10⁻⁻2 और ये है 1 इंटू 10⁻⁻6. ठीक है. तो ये हो गया ई सेल 0.30 माइनस 0.0591 अपॉन 6. ये हो जाएगा 10⁴ ऊपर जाएगा तो, और 10⁴ का लॉग वैल्यू क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि 4 आगे जाएगा. 4 log 10 हो जाएगा 4 log 10, क्योंकि लॉग की a⁻m होता है तो m की पावर जो है वो आगे आ जाती है, और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया 1. ठीक है. यहाँ 6 लिखना है. ठीक है. अब ये कैंसिल हो जाएगा. 0.30 माइनस 0.0591 अपॉन 6 इंटू 4, ये 2 ये 3. ठीक है. इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.06 ले लें आपने, तो ये हो गया 0.04. तो अप्रोक्सीमेट आपका ये वैल्यू आ जाएगा 0.30 माइनस 0.04 यानी 0.264. आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं. 0.0591 को क्या लिख सकते हैं? 0.06. तो 0.06 डिवाइड बाय 3 0.02 इंटू 2 0.04. तो 0.30 में से 0.04 गया तो 0.26. तो दिस इज द ई सेल ऑफ द रिएक्शन. इज इट क्लियर? आया समझ में आप लोगों को? आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा अभी कि कैसे